In today's class, we are going to discuss about the midbrain. Okay, so in midbrain there is mesencephalon. So there are certain particular structures which are found there in mesencephalon. So in midbrain, friends, there are two prominent parts. One of them is tectum, another one is tegmentum. Tectum and tegmentum. So tectum is at the dorsal surface. Dorsal surface here means what? At the upper surface of midbrain. Okay, dorsal means at the upper. You can say tectum is something which is there. I mean, वो रूफ पर होता है ना, और फ्लोर पे कौन होता है? टेगमेंटम होता है. मिड ब्रेन के रूफ पे कौन होता है? टेक्टम होता है, और फ्लोर पे कौन होता है? टेगमेंटम होता है. So that's why we say that tectum is dorsally located and tegmentum is ventrally located. Since we use dorsal to indicate for uh, upper position, and ventral term we use for lower position. Okay. So friends, tectum contains certain particular kind of other structures. One of them is inferior colliculi. So friends, inferior colliculi is something which is actually responsible for auditory function. Okay. And superior colliculi is something which is having some kind of motor function to direct the body's orientation toward or away from visual stimuli. So this superior colliculi is related with visual interpretation, visual perception, and inferior colliculi is related with the auditory function, right? So in tectum, these are two parts. Then let us discuss about tegmentum. Tegmentum is at the floor. Okay, let us discuss about. I mean, there are three colorful surfaces which are found there as a part of tegmentum. One is periaqueductal gray matter that is situated around the cerebral aqueduct, which connects third and fourth ventricles. That connects third and fourth ventricles, and it is this which, if gets obstructed, then we find that there would be some kind of possibility of enlarging of the size of the brain. Okay, as a result of, जिसमें हम कहते हैं ना कि वो पानी भर गया है, ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो दरअसल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में वो साइज, क्योंकि ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है दैट कंटिन्यूज टू रन फ्रॉम, आई मीन ये वेंट्रिकल और ये हमारा जो स्पाइनल कॉलम है ना, उससे पूरा ये पूरा सब जुड़े हुए होते हैं, और हमारे जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं वे जुड़े हुए होते हैं. So it also plays role in analgesic effects of drugs, certain particular kind of drugs. Okay. Then there is substantia nigra, and then there is red nucleus. So friends, in tegmentum, these are three structures. What are those three structures? One is periaqueductal gray matter. The second one is the substantia nigra, and then third one is red nucleus. Now, let us further discuss about whole of the structure and whole of the function that we have in midbrain. Okay, so in midbrain, this particular structure also has function in similarity with just as there in hindbrain. So just as a spinal cord also, just as hindbrain also. Okay, so midbrain is actually relatively very small section of the brain. Okay, so the group of the okay, इसका जो रूप है मिड ब्रेन का, है ना, उसको हम टेक्टम बोलते हैं, और देन स्ट्रक्चर्स ऑन ईदर साइड आर, है ना, सुपीरियर कोलिकुलस एंड इंफीरियर कोलिकुलस. ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टेक्टम के अगल बगल होते हैं. ठीक है, ठीक है, सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस और टेक्टम के अगल बगल होते हैं. अंडर द टेक्टम इज टेगमेंटम with parts of reticular formation भी. से रेटिकुलर फॉर्मेशन एक एक्चुअली ऐसा वेब ऑफ न्यूक्लियाई है
है ना, विच रन्स आई मीन पूरा ब्रेन स्टेम से में काफी लंबी दूरी तक पूरा रन करता है, पूरा हाइंड ब्रेन तक जाता है, ठीक है। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो रन करते हैं, and also contains some nuclei of the cranial nerves there also, and a red nuclei is involved in the involuntary movements. Okay, let us discuss about what are specific functions of certain different structures of our midbrain. एक तो substantia nigra, which is here. So substantia nigra, it plays some role in smooth bodily movements, है ना, जो जो ऐसे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं जिसमें हम जैसे मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसमें देयर इज रोल ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा, या वट एवर द परसेप्शन ऑफ आर्ट दैट वी हैव, हमें that happens in body. There are certain art there. Actually releases certain particular kind of neurotransmitters, dopamine जो से secrete होता है, और एडिक्शन का जो हैपनिंग होती है वो भी, उसमें भी सब्सटेंशिया निग्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है, और डैमेज टू दिस स्ट्रक्चर लीड्स टू पार्किंसंस डिजीज, है ना। ये जो पार्किंसंस डिजीज होता है जिसमें बॉडी में बड़े ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स में मतलब अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं, हाथ पैर का ऐसे जो मूवमेंट होता है, ठीक है, पार्किंसंस डिजीज। तो इसमें डोपामाइन की कमी हो जाती है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को, सब्सटेंशिया निग्रा को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरह के लीजन्स यहाँ हो जाए, then there can be possibility of occurrence of Parkinson's disease. And then ventral tegmental area, there is a ventral tegmental area which is the part of tegmentum, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर तरह के न्यूक्लियाई वहां होते हैं। They participate in incentive motivation. Incentive motivation का मतलब क्या हुआ? What it means by incentive motivation? Incentive motivation means that we derive pleasure or we seek some kind of reward in the form of some kind of incentives. अब incentives आपने सुना होगा, कभी अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि हमें incentives इस बार मिलने जा रहे हैं, मतलब हमारी सैलरी बढ़ने जा रही है या हमारा बोनस बढ़ने जा रहा है ना। So incentives means something which is of importance, which is attractive to us and which is outside of us, है ना। जो हमारे बाहर है वो मनी के फॉर्म में हो सकता है, वो कुछ तरह के सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में, कुछ और भी डिफरेंट फॉर्म्स में इंसेंटिव्स हो सकते हैं। यू विल फर्दर स्टडी अबाउट incentive motivation in much more detail when you will study in second semester about other papers, I mean psychology of individual difference, और जो भी और भी बहुत सारे जो पेपर्स हैं उनमें जब आप पढ़ेंगे then you will further discuss about incentive motivation. Okay. और ये जो हमें whatever pleasure, whatever motivation, whatever craving that we experience for food, अब मैं पिछले कुछ 15 दिनों से मैंने नमक कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। मैंने देखा कितनी क्रेविंग होती है, कितनी क्रेविंग होती है कि नमक खाने के लिए, चीनी खाने के लिए, ठीक है। और भी अब चाहे ये क्रेविंग हो, दिस क्रेविंग में बी देयर आल्सो, दिस क्रेविंग कैन सेक्सुअल, ये जो हमारे अंदर इस some kind of pleasure through food, sex, I mean, whatever other kind of incentive that we have outside. I mean, that can be in the form of some kind of increase in payment also, and increase in salary also, increase in bonus also. In different forms it can be found. तो ये इन सारे चीजों में वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये जो हमारा मिड ब्रेन है ना, अब देखो ना, एक बड़ी गजब की बात हमें ये समझ में आती है that whatever pleasure that we have, that pleasure is nothing other than, अगर हम थोड़ा सा रिडक्शनिज्म वाली लैंग्वेज में बात करें, आगे आप पढ़ेंगे रिडक्शनिज्म क्या होता है, जिसमें हम चीजों को एनालाइज करते हैं साइकोलॉजी में। देयर इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव व्हिच इज देयर इन साइकोलॉजी। तो हम अगर उस अप्रोच से देखें तो हमें क्या समझ में आता है, हमारी प्लेजर, हमारी सैडनेस और कुछ नहीं है, कुछ न्यूरॉन्स का की फायरिंग है ना, या उनका इनहिबिशन है, उनका उनमें कुछ पर्टिकुलर तरह के रेस्टिंग पोटेंशियल्स जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ एक्शन पोटेंशियल्स फॉर्म हो रहे हैं, और फिर डिपोलराइजेशन हो रहा है। उसी के कारण आप देखिए, कोई भी एक तरह का सुख आप कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते,
कोई भी एक तरह का सुख आप कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते। और ये जितने भी सुख हैं, ये अगर हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारे न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन उसमें जो है मेडिएट ना करे, तो कोई भी सुख हमें एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। अब किसी लकड़ी के लट्ठे को आपने कौन सा म्यूजिक बजाया या किस तरह का खाना आप ला करके उस पर रख दिया, उससे क्या लेना देना, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंसेंटिव मोटिवेशंस होते हैं, उसमें अगर आप देखें, या जितने भी प्लेजर्स होते हैं, या जो भी हमारी सैडनेस होती है, दैट इज एक्चुअली दे बिकॉज ऑफ, I mean, not only because of, there can be something other also. There can be certain other causal pathways also. लेकिन अगर आप ये देखें तो अगर उसको हम चेंज कर सकें, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे एक्टिव है हमारी बॉडी में, तो हम चेंज कर सकते हैं कि हमारा प्लेजर या हमारी जो सैडनेस का एक्सपीरियंस हो रहा है वो कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर जो डाइट के थ्रू मूड, डिफरेंट तरह के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया। जैसे आपने सुना होगा फूड होता है, रजोगुणी फूड होता है, तमोगुणी फूड होता है। आपने सुना होगा कि अगर आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप लौकी सिर्फ खाते हैं या कच्ची चीज खाते हैं, तो आपको थोड़ी देर में मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है। आप बहुत मसालेदार चीजें खाते हैं तो आपका मन एजिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है। ठीक है, इम्पल्सिव होता है। ठीक है, तो अब कुछ पर्टिकुलर तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, पर्टिकुलर तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्टिकुलर तरह का केमिकल कंपोजिशन है, विच इज रिजल्टिंग इनटू पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें समझ में आई। एंड वेंट्रल एरियाज कंट्रोल मोटर फंक्शन। एक चीज और ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल अगर हम मिड ब्रेन के फंक्शन को देखें, सो ओवरऑल I mean, in nutshell, you can say that the ventral areas, the lower areas of midbrain, they control actually motor function, है ना। वो जो हमारी बॉडी के मोटर फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जो डॉर्सल रीजन होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन सर्किट्स में, जैसे आपने देखा टेक्टम इज देयर एट द रूफ, है ना, एंड टेगमेंटम इज एट द फ्लो। ठीक है, तो आप वो जो ऊपर वाला है उसमें देयर इज ऑडिटरी फंक्शन, देयर इज विजुअल इंटरप्रिटेशन, है ना। और जो वेंट्रल एरियाज हैं वो इंसेंटिव मोटिवेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिवार्ड के परसेप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डिफरेंट तरह के जो मोटर फंक्शंस होते हैं जिसमें वी एक्सपीरियंस समथिंग, है ना। तो एक्सपीरियंस क्यों होता है, क्योंकि देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ मोटर नर्व्स देयर। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग टुडे अबाउट मिड ब्रेन।